Assalamualaikum students. Open your books, page number is 22. Today we have to study from the types of agriculture. Page number 22. मारिया की आवाज Hello, आवाज नहीं आ रही? Okay, we have to start from types of agriculture. Small scale arable farming with livestock insects. So, from this topic, we have to start from an example of a village and how farming takes place over there. Okay, small scale farming. Small scale farming means farming on a very small scale. It means small scale. So small scale farming is also practiced in Punjab and some other parts of Pakistan. It is described as small scale because these farms and the amount they produce are small when compared with some other types of farms in Pakistan and other countries. Okay, अब इनको हम small scale क्यों बोलते हैं? क्योंकि because these farms, the amount of the crops they produce, the amount they produce is very less as compared to other countries or as compared with other types of farms in Pakistan or other countries. Okay, so what are they showing you? This is a an irrigation dish which I have shown you earlier, which was with the previous topic. So page number 22, I'm repeating again if anyone is having confusion. जी, outside the Goths किसको बोला हुआ इन्होंने? Village को, where Nazir and his family live. Goths किसको बोलते हैं? Small village. So this is the picture of a small village where Nazir and his family live. They are talking about Nazir and his family. So इससे पहले वो आपको बता रहे हैं the fields are plowed once or twice a year to prepare the soil for the next crops. कि जो fields हैं उनको साल में एक मरतबा या दो मरतबा उनको plow किया जाता है, means उन पे उनको level किया जाता है, उस soil को level किया जाता है और इसमें अगर कोई weeds होते हैं तो उनको remove किया जाता है, तो उसको prepared किया जाता है so that in the next year more crops can be grown in the next year. Underline land which is plow or dug is called arable land. ठीक है, जिस लैंड को हम डग करते हैं, उसमें से वीड्स रिमूव करते हैं, उसको लेवल करते हैं, ऐसी ज़मीन को हम क्या बोलते हैं? अरेबल लैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेबल? अरेबल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अरेयर. अरेबल जो वर्ड है ये किससे आया है? लैटिन वर्ड अरेयर से, which means to plow, जिसका मतलब क्या है? To plow. So now we have to study an example of Nazir and his family. So one of you can read. Raise your hands who wants to read. Okay, Fatma, you can read. Nazir is 5. Nazir, his wife Naseem, their children Shah Hussain 15, Abdul Rashid 14, Zarina and Abdul Qadir twins 10, Zaki 7, Abida 6, together with Nazir's mother. Sister and an aunt and uncle are one of Okay, Heather 5 can million read. farmers. Okay, stop reading, Fatma. Yes, Heather, you can read. From sisters and an aunt and uncle. जी Heather. From sister and aunt and an aunt and uncle are one of the 5 million farming families in Pakistan. They belong to Are one of the 5 million farming families. How many
families, farming families are in Pakistan? 5 million. Okay, आगे. They belong to the Kashili tribe and live in the Thata district in Sindh. Figure District. 2.11 shows the Goth small village where they live. What do you see around the outside of the Goth? Figure 2.12 shows Zaki and his friends inside the Goth. What are the houses made of? Who do you think built them? Okay, stop reading. In So, what we have, turn on your camera, students. Turn on your cameras. G, what we have studied is that we are studying now small scale arable farming with livestock in Sindh. ये Sindh की बात हो रही है. They are talking about Sindh. Okay. So, what is arable means to plow. So we are talking about a small scale farming, means farming which is on a small scale, means which has very less amounts, okay, which produce very less amounts, which sell very less amounts. This is a small scale farming. ये मतलब वो एक छोटे पैमाने पे small scale farming है, arable farming. So it is very it is described as small scale because these farms and the amounts they produce are small when compared with some other types of farms in Pakistan and other countries. Okay, arable का मैंने आपको मतलब बता दिया था. Arable means to plow. So now I am talking about Nazir and his family. So look at your books. Nazir and his wife Naseem. What are they saying? Nazir, his wife Naseem, their children Shah Hussain 15 years of age, Abdul Rashid 14, Zarina and Abdul Qadir twins 10, Zaki 7, Abda 6 together with Nazir's mother. ये उसकी पूरी फैमिली बताई है विद नज़ीर्स मदर, जिसमें नज़ीर इसके साथ ही नज़ीर की मदर, सिस्टर्स एंड एन आंट एंड अंकल, अब ये भी रहते हैं साथ. आर वन ऑफ द 5 मिलियन फार्मिंग फैमिलीज इन पाकिस्तान. ये जो 5 मिलियन फार्मिंग फैमिलीज हैं उनमें से उन्होंने एक फैमिली आपको बताई. ये एक फार्मिंग फैमिली है. देखें आप कितना मतलब यानी बड़ा उन्होंने खानदान उनका बताया. They belong to the Kashili tribe. ये ट्राइबल एरियाज है बेसिकली, जो सिंध के एरियाज होते हैं जो इस तरह से विलेज साइड पर आ रही है, सब ट्राइबल एरिया. एंड लिव इन द ठट्टा डिस्ट्रिक्ट इन सिंध. सिंध के ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में रह रहे. फिगर शोज द गॉथ्स यानी स्मॉल विलेज. नाउ यू कैन सी आउटसाइड द गॉथ्स वेयर नज़ीर एंड हिज फैमिली लिव. ये गॉथ से थोड़ा सा हटके है जहाँ पर नज़ीर और उसकी फैमिली जो है वो रहती है. What do you see around the outside of the Goth? Figure shows Zaki and his friend inside the Goth. अब figure 2.12 ये Zaki and his friend inside the Goth. ये Goth में Zaki और उसके friend को दिखाया गया है, यानी village में. Zaki और Zaki कौन है? उसका जो बेटा है नज़ीर का, नज़ीर son. Zaki is Nazir's son. So Nazir's son and his friend, and Zaki friend. Okay, and his son's friend. So now you tell me, what are the houses made of? Who do you think built them? What do you see around the outside of the Goth? Yes, who wants to answer these questions? जी, कौन बताना चाहता है कि what do you see around the outside of the Goth? आपको Goth के बाहर क्या नजर आ रहा है, मतलब उसके इर्द गिर्द? जी, मोमिन. टीचर मैं तो अभी मीटिंग ज्वाइन किया है तो कुछ पता नहीं है कि आप क्या. अच्छा, ठीक है. Open page number 22. We have just started yet. Okay, teacher. Okay, Fatma Hassan, you can tell. Unmute yourself. जी रोहान, आप बताएं. आप तो शुरू से बैठे हैं. जी. आप बताएं. What do you think? What do you see around the outside of the Goth? ये पिक्चर जो है आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? This one, this figure 2.11. टीचर ये पिक्चर एक विलेज के बारे में है. यहाँ पे एक फैमिली आई थी जिसको हमें ये बताया गया है जाकी एंड हिज फ्रेंड्स की. Okay, what kind of ground you can see over here? किस तरह का आपको बिल्कुल जमीन प्लेन नजर? ग्राउंड है.
मतलब कि सहरा जैसे और कि है। यस ऐसे लग रहा है जैसे ये डेजर्टेड एरिया है. सो बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट वेरी फर्टाइल. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हर जगह ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल. और जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है 2 फिगर 2.11 में कि इट्स अ डेजर्टेड एरिया, मीन्स खाली जगह है और ज़मीन भी कैसी है, ड्राई है. बिकॉज द टेम्परेचर इज टू मच, सो दिस लैंड इज ड्राई. ओके. It is So that is why it is called agriculture. no, they do agriculture. There are some places which are very fertile. लेकिन ये जो उनका मतलब उन्होंने जो ये जगह दिखाई हुई ये थोड़ी सी इस तरह की है. तो वो लैंड को पहले प्रिपेयर करते हैं ना, यानी वो लैंड को जो उसमें से एक्स्ट्रा वीड्स है वो सब उन्होंने इसलिए कहा है ना कि यानी स्मॉल स्केल फार्मिंग होती है कि वो लैंड को थोड़ी सी ज़मीन को वो प्रिपेयर करते हैं, फिर जो भी सूटेबल लैंड हो फिर वहीं पर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं. So what are the houses made of? Yes, who will answer me? What are the houses made of? ये houses किसके बने हुए हैं? टीचर मैं बता दूं, Yes. टीचर कुछ हाउसेज मेटल के बने होते हैं, कुछ वुड्स के बने होते हैं, कुछ स्टील के बने होते हैं, कुछ आयरन के बने होते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं. जी ये वाले houses किसके बने हुए हैं? ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है. टीचर ये वाले हाउसेज, Yes. टीचर आई थिंक ये sticks स्ट्रॉ के से बने बनाए गए हैं. Yes. स्ट्रॉ से Straws से बनाए कह गए. सकते हैं या आप कहेंगे ये स्टिक से, ये जो होता है ना लाइक थॉ, जिसे हम थॉ बोलते हैं, ये उसकी बने हुए हैं. ये जो घर है ये थॉ के बने हुए हैं. तो ये लोग खुद ही अपने घर बनाते हैं. हु बिल्ड देम, सो दे खुद ही ये थॉ जमा करते हैं और फिर जो ये मतलब लाइक एज अ ग्रेन जो कि ये काउस वगैरह को भी खिलाते हैं उसी को ही ये जमा करते हैं, उससे ही घर बनाते हैं. ओके, ओपन पेज नंबर 23. तो इसी प्रोसेस के अंदर वो एग्रीकल्चर भी बना लेते हैं. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इसी पेज पे जो लिखा हुआ है. एग्रीकल्चर वो करते हैं क्योंकि उनकी जो लिविंग है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. मतलब वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनको सेल करते हैं, जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे आते हैं उसी से ही वो रहते हैं. और फिर वही मतलब उन्हीं कुछ वो अपने फूड के लिए भी रख लेते हैं और कुछ वो ज़्यादातर वो सेल कर देते हैं. तो ये उनका एक लिविंग स्टाइल है. ये उनकी लिविंग उन्होंने आपको डिस्कस इसलिए की हुई है ताकि आपको उनकी लिविंग समझ आ सके कि ये जो फार्मर्स होते हैं या फार्मिंग फैमिलीज होती हैं ये कैसे रहती हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 23. अभी आपको एक मैप नजर आ रहा है. व्हाट इज दिस मैप शोइंग? इसकी आप की देखें जो कि इसमें अभी आपको नजर नहीं आएगी ऑन स्क्रीन. आप लोग अपनी बुक्स में देखें. लुक एट योर बुक्स. देयर इज अ की गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस मैप. What is the keys? The red color is showing the roads. Okay, the blue is showing the irrigation ditch. Irrigation ditch क्या है? Means it is supplying water. Means it is for supplying water to the crops. Okay, जो irrigation ditch है ये आपको क्या शो कर रही है कि it is for supplying water to the crops. ये क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करे, इसलिए हम इसको क्या लिखा हुआ है, इरिगेशन के नाम. ओके, नाउ लुक एट द पिंक कलर. व्हाट इज द पिंक कलर शोइंग? गोथ. अब आप देखो इतना बड़ा मैप है एंड जस्ट अ लिटिल पिंक कलर इज द गोथ. यानी सिर्फ इतना छोटा सा विलेज है और जहाँ पर नज़ीर और उसकी फैमिली जो है वो रहती है. वेयर नज़ीर एंड हिज फैमिली लिव देयर इन जस्ट अ स्मॉल विलेज. यू कैन सी in the whole map there is just a small pink. So wherever the pink color is, these are showing you the villages. यानी वो भी विलेज है, उससे नीचे जो पिंक कलर आ रहा है ये भी विलेज शो कर रहा है और उससे नीचे एक और जगह पे पिंक कलर आ रहा है वो भी विलेज शो कर रहा है. रोहान, 1 minute I will ask it. So they are showing you the villages. Okay, so the Nazir family lives in the top one village. जो सबसे ऊपर वाला पिंक कलर है वो वहाँ वो क्यों उन्होंने आपको प्रेजेंट किया है? बिकॉज नज़ीर एंड हिज फैमिली लिव हियर. ओके, सो वेयर डज नज़ीर्स फ्रेंड्स लिव्स? इन दी ब्राउन कलर. जो आपको ब्राउन कलर दिखाया गया है, जो मतलब इस तरह से हल्का सा कलर दिखाया गया, ये वाला जो ब्राउन कलर है ये आपको क्या शो कर रहा है कि नज़ीर्स फ्रेंड्स लिव हियर. अब देख रहे ये भी इसके विलेज के करीब है ना ये जगह, तो इसलिए नज़ीर और इनके जो फ्रेंड्स हैं वो मिलते रहते हैं बिकॉज नज़ीर फ्रेंड्स लिव ओवर हियर. सो विराज,
Where is the barrage? Over here, over the irrigation canal. Can you see the barrage? This one. This one is the barrage. ठीक है, अब हम इसको read करते हैं. Page number 23 देखें. In this area of Thatta district, ये कौन सा area आपको उन्होंने show किया है? Thatta district, okay? Which is shown in the map, figure 2.30. The people living in the village and the 3 gods farm the land. अब ये जो 3 gods है, this pink, this one pink और इससे नीचे एक और pink है. ये 3 gods है. ये बहुत ही small villages है. वो fields हैं. नज़ीर की, अच्छा सॉरी मुझे लगा था वो friends लिखा हुआ है. ये fields है. ओके, ये villages नहीं है. These are the fields. ये उन्होंने आपको fields show की. ये जो brown color है, these are showing the fields where Nazir and his family farms are over here in the brown color. Okay, so this is an area of Thatta district which is shown on the map, figure 2.13. The people living in the village and the 3 gods. अब village कौन सा है? This yellow color. ये देख नजर आ रहा है आपको yellow color? ये village है. Most of the people live here. This is the village and this pink color is the goth. Goth means small village. यानी जो उनका जो village है वो बहुत ही small है, बहुत ही छोटा है. So Nazir and his family live in the goth, and the other people live in the village, which is in the yellow color is showing. So more people live in the village than in the goth. How can you tell by looking at the map figure 2. Now who will tell me that more people live in the village than in the goth? How can you tell? By just looking at the map. Ji Momin. Yeah, because villages are big. Teacher, it can hold many people, and teacher, the gorge is a small village, so not many people can live at that. Yes, good. So as you can see from its size that a village is having more capacity to fill more people as compared to the goth. So less people live in the goth and more people live in the villages. Yes, Rohan. Unmute yourself. हर मैप के अंदर की होती है. Yes, there should be a key. अगर आप खुद भी कोई मैप ड्रॉ करके अपना एरिया प्रेजेंट करना चाहते हैं या अपनी सिटी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू शुड मेंशन अ की विद दैट, क्योंकि अगर आपने कलर्स किए हुए हैं और उससे आपको पता है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, बट नॉट एवरीवन नोज कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे अभी हमें नहीं पता था ये येलो कलर क्या प्रेजेंट कर रहा है. इफ वी डोंट हैव अ की होगी तो हमें पता लगेगा ना कि ये अच्छा ये येलो कलर जो है ये विलेज दिखा रहा है, ये रेड कलर जो है ये यहाँ से रोड पास हो रही है. सो बिकॉज ऑफ अ की वी नो व्हाट इज द मैप रिप्रेजेंटिंग. ठीक है, उसके अलावा अब उन्होंने आपको ये फील्ड्स दिखाई हैं ब्रजी, और कुछ सवाल? जो और ये येलो क्या है? येलो कलर विलेज है ना? नहीं ये दूसरे पे है. ब्राउन कलर, that are Yes. the fields, that are the Nazir fields. ये जो नज़ीर की जो fields उन्होंने आपको दिखाई कि जहाँ पर उसकी फैमिली फार्मिंग करती है. ठीक है. अच्छा जैसे तो उनके साथ ही फील्ड है, उनके घर के साथ. हाँ, yes Momin. Yeah, what is this cross sign at the map? क्रॉस साइन नहीं है, वो बिराज दिखाया है. टाइडल बिराजेस होते हैं ना, मोस्टली नियर द विलेजेस टाइडल बिराजेस होते हैं जो हमने साइंस में मैंने आपको पढ़ाया था. टाइटल हाँ जी टीचर, टाइटल विराजेस, टाइटल विराज, वेव पावर. ओके, सो आज भी हमारी साइंस की क्लास है. okay, more people live in the village than in the goth. How can you tell by looking at the map? ये तो हो गया. The map figure 2.13 also shows the field that Nazir owns. अब ये सारी जो fields आपको brown color में नजर आ रही है ना, ये सब fields किसकी है? नज़ीर की है, नज़ीर फैमिली की है. Because he inherited them from his father. क्योंकि ये नज़ीर को उसके फादर से, आपको पता है ये जो गांव के लोग होते हैं, विलेज पीपल होते हैं, इनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं क्योंकि इनके वो एरिया होता है और इनको इनके मतलब इन्हीं फोर फादर्स से और इन सब से जो है वो ये मिलती हैं, ज़्यादा मिलती हैं ज़मीनें वगैरह. So Nazir owns these fields because he inherited them from his father. Sons usually inherit their fathers from. The fields may vary. For example, अब fields vary कर सकती हैं. क्यों कर सकती हैं? Because we have read in agriculture that some fields may be good
एंड सम फील्ड्स में बी पुअर, यानी कुछ फील्ड्स हो सकता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में रिच हो, कुछ फील्ड्स हो सकते हैं ज़्यादा फर्टाइल हो, एंड सम फील्ड्स में बी नॉट सो फर्टाइल। सम फील्ड्स हैव गुड और पुअर सप्लाईज ऑफ इरिगेशन। फिर ये कि जैसे अब ये देखो, ये इरिगेशन कैनाल है, अब ये फील्ड बहुत करीब है, यहाँ ये वाली जो आपको बिल्कुल साथ दिखाई है कि बिल्कुल इसमें जो है वो पानी डायरेक्ट एंटर हो सकता है। अब ये कुछ फील्ड्स जो हैं वो इससे दूर हैं, तो जो मतलब यानी डिस्टेंस पे होंगी उनको पानी इतना नहीं मिलेगा, सप्लाई इतनी नहीं मिलेगी, उनको कम मिलेगी, और जो करीब है उनको ज़्यादा सप्लाई मिलेगी। सो द दे मे बी क्लोज टू और फार अवे फ्रॉम द विलेज और गॉड। और इसी तरीके से जो फील्ड्स हैं वो कुछ फील्ड्स जो हैं वो गॉड के करीब भी हो सकती है और कुछ गॉड से दूर हो सकती है, तो उन्हें आने जाने में भी जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ये उन्होंने आपको बताया है 3 रीजंस कि जो फील्ड्स हैं दे मे वेरी, सो दीज आर द 3 रीजंस व्हाई दे वेरी, यानी वो क्यों उनमें फर्क है, डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस दैट the soil may be fertile at one place and not so fertile at the other place, or there may be a good supply of irrigation water in one field and not in the another field, and they may be close to or far away from the village or god. So these are the reasons behind the idea. इसी वजह से जो फील्ड्स होती हैं वो डिवाइड, सारी फील्ड्स उसी को जाएंगी ना, लेकिन अगर एक से ज्यादा गेट इक्वल शेयर ऑफ द बेटर एंड पुअरर फील्ड्स, तो फिर उनको बेटर फील्ड और पुअरर फील्ड की उसके हिसाब से उन्हें इक्वल शेयर मिलता है। दिस एक्सप्लेन्स द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फील्ड्स विद इर्रेगुलर शेप्स शोन ऑन द मैप। अभी आपको इर्रेगुलर शेप्स की फील्ड्स नजर आ रही है ना, ये क्यों नजर आ रही है, क्योंकि ये डिवीजन हुई है, यानी पुअर और गुड सॉइल की वजह से और इरिगेशन की वजह से उनकी फील्ड्स जो हैं वो डिवाइड होके मिलती है, यानी सारी अच्छी फील्ड्स एक बेटे को नहीं चली जाती, डिवीजन होती है, मींस इक्वल गुड और बैड जो फील्ड्स होती हैं वो इक्वली डिवाइडेड होती है बिटवीन द सन्स। ओके, ओपन द नेक्स्ट पेज। लैंड ओनरशिप, yes we have to read land ownership. Yes, who is going to read? मैं साथ साथ explain भी करती जाऊंगी इसको। मोमिन, you can read. Nazir owns 83% of the farms in Pakistan are smaller than 5 acres. As an owner, Nazir does not pay any rent as does his neighbor rents his farm, so he is a tenant farmer and has to give quite a large amount of his crops as rent to the landlord, Rahim Baksh. The landlord lives in Thata, so is called an absentee landlord. Another neighbor, Pila, is less fortunate than either Nazir or Mita. Pila is described as a landless laborer. This is because he does not own or rent any land and he has to try to find one work on other people's farms. Sometimes he finds work at the poultry farm shown in Fig Okay, 2.14. okay, stop reading. So what are they saying? You land ownership. अब जमीन जो ownership होती means to have to own some property of something, यानी करना। So नज़ीर के पास कितनी जमीन है, कितनी उस पे मतलब उसकी नज़ीर owns 4 acre, उसकी जमीन कितनी है 4 acre। 3% of the farms in Pakistan are smaller than 5 acres. यानी 33% उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो 33% farms are smaller than 5 acres. तो नज़ीर के भी उसी एक फार्म में उसका 1% आ रहा है। Owner Nazir does not have to pay any rent, so does his neighbor Mitha. अब मिठा जो है वो उसका क्या है, नेबर है। अब as an owner, because Nazir is the owner, so he does not have to pay any rent for his
लाइक होते हैं ना कि कुछ लोग जैसे कुछ फार्मर्स जो है वो ज़मीनें लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं और वो भी पे करने पड़ते से भी कम है। अब नज़ीर का तो सारा कुछ अपना है। He has his own land, okay, where he works and he does not have to pay any kind of rent to his neighbor. मिठा rents his farm. अब मिठा जो है वो उसके साथ काम करता है, यानी उसका नेबर है, he is working with him, so he has to pay the rent. उसको क्योंकि उसके साथ काम कर रहा है, उसको उसकी rent फिर उनको मतलब यानी जो आके उनकी जो फसल यानी क्रॉप्स आती हैं तो फिर उनको इक्वली शेयर मिलता है। तो मिठा रेंट्स हिज फार्म, मिठा को उसके फार्म के पैसे देने पड़ते हैं, रेंट जो है वो देना पड़ता है। सो ही इज अ टेनेंट फार्मर एंड हैज टू गिव क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हिज क्रॉप्स एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड रहीम। ओके, नज़ीर इज नॉट हिज लैंडलॉर्ड, हिज लैंडलॉर्ड इज समवन एल्स, वो किसी और के लिए काम करता है, वो नज़ीर के लिए काम नहीं करता। ठीक है, मिठा जो है जो उसका नेबर है, he does not work with him, he works for someone else on his farm where he have to pay the rent। और उसके अलावा उन्होंने आपको क्या बताया है कि he has to give quite a large amount of his crops as rent to the landlord, कि वो रेंट के तौर पे क्या देता है, पैसे नहीं देता बल्कि क्रॉप्स देता है अपने लैंडलॉर्ड को, जिसकी ज़मीन है। ज़मीन किसकी है? रहीम बख्श की है। मीन्स लैंडलॉर्ड रहीम बख्श है और मिठा जो है ही इज वर्किंग ऑन हिज लैंड, वो उसकी फार्म पे वर्क कर रहा है, वो उसकी क्रॉप्स को मतलब ग्रो करता है और उसके बाद जो क्रॉप्स वो जितनी मेहनत वो करते हैं, जो भी हार्डवर्क वो करते हैं और जितनी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उसमें से उन्होंने बताया कि एक लार्ज अमाउंट जो है क्रॉप्स की, उसको वो क्रॉप्स जो है वो किसको देनी पड़ती है? टू दी लैंडलॉर्ड एज अ लाइक ताकि वो उसको एज अ रेंट उसको पे करें। द लैंडलॉर्ड लिव्स इन ठट्टा। अब वो जो लैंडलॉर्ड है, रहीम बख्श की बात हो रही है कि वो इधर नहीं होता, तो ही लिव्स इन द ठट्टा, तो ही इज एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, एब्सेंटी जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, कि आप प्रेजेंट नहीं हो एक जगह पे, कि ही इज नॉट प्रेजेंट ओवर दैट एरिया, ही इज एब्सेंट फ्रॉम दैट एरिया, तो ही इज कॉल्ड एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अब एक और नेबर की बात वो बता रहे हैं, पीला। This one is another neighbor of नज़ीर। अब ये सारे नेबर्स की बात हो रही, नज़ीर के नेबर्स हैं कि उसके। अब नज़ीर तो क्योंकि उन्होंने बताया कि नज़ीर हैज़ हिज ओन फार्म्स, तो नज़ीर डज नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ रेंट। वो जो काम करेगा उसका सारा फ़ायदा, उसका सारा बेनिफिट नज़ीर को खुद होना है। ठीक है, जो उसके नेबर्स हैं मतलब उनकी बात हो रही है, लाइक अनदर नेबर पीला इज लेस फॉर्चुनेट देन आइदर नज़ीर और मिठा। लेस फॉर्चुनेट यानी उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, सो इज लेस फॉर्चुनेट। पीला इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंडलेस लेबरर। लैंडलेस लेबरर यानी जिसकी आगे उन्होंने लिखी हुई है डेफिनेशन, अंडरलाइन कर लें। पीला इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंडलेस लेबरर। लैंडलेस लेबरर मीन्स कि दिस इज बिकॉज ही डज नॉट own or rent any land and he has to try to find work on other people's farm. It means उसकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है, एंड ही हैज़ टू फाइंड वर्क ऑन अदर पीपल फार्म, और उसे दूसरे लोगों की ज़मीनों पे काम ढूंढना पड़ रहा है और फिर वो उनके लिए काम करते हैं और उसमें वो जो क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, फिर अगेन वही कि ज़्यादातर हिस्सा उसको एज अ रेंट पे करना पड़ता है। तो ये क्या है? लैंडलेस लेबरर, के वो बेचारा एक लेबर है, ही इज नॉट हैविंग एनी लैंड, उसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है। Sometimes he finds work at the poultry farm shown in figure 2.14। अब ये आपको 2.14 पे आपको नजर आ रहा है, ये पोल्ट्री फार्म है। द पोल्ट्री फार्म वेयर मिठा समटाइम्स वर्क्स। ये पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मिठा वर्क करता है। और समटाइम्स उन्होंने आपको बताया कि जो पीला है, he finds work at the poultry farm shown in figure। There are hundreds of chickens in the building. They are reared and then sold in Karachi। अंडरलाइन कर लें कि इनको यहाँ पर रेयर्ड किया जाता है, हंड्रेड्स ऑफ चिकन्स हैं यहाँ पे, उनको रेयर किया जाता है एंड देन सोल्ड इन कराची, फिर उनको कराची में सोल्ड कर। अब है द फार्मर्स ईयर। नज़ीर वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। नज़ीर जो है ही वर्क्स थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ही ग्रोस बोथ क्रॉप्स। अब क्योंकि वो तो उसके पास तो लैंड है, लैंड ओनरशिप है, ही इज नॉट अ लैंडलेस लेबरर। वो लैंडलेस लेबरर तो नहीं है ना, ठीक है, ही इज हैविंग अ लैंड। So he works throughout the year because he grows both crops, Kharif यानी summer crops from April to September and Rabi यानी winter crops from October to March। Kharif crops कौन सी होती हैं? Summer crops। और वो कब से कब तक ग्रो करती हैं? April till September।
सितंबर, और जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं विंटर क्रॉप्स, दे ग्रो फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। द टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई इनफ इन सिंध। सिंध में हमेशा गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इनफ हाई होता है फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, बट क्रॉप्स कैन ओनली ग्रो वेल इफ दे आर इरिगेटेड। लेकिन अगर क्रॉप्स को पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, ओनली देन दे कैन ग्रो वेरी वेल। वो सिर्फ तभी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके, so a major canal from the Kotri Barrage to the north on the river Indus। अभी आपको कैनाल नजर आ रहा है? ये कैनाल कहाँ से जा रहा है? From the Kotri Barrage to the north on the river Indus। It provides water for the smaller irrigation canal shown on the map figure 2.13। फिगर 2.13 में जो आपने इरिगेशन कैनाल्स देखे थे ना, वो कह रहे हैं कि ये एक बैराज है। ये बैराज जो है ये वाटर सप्लाई कर रहा है। इट इज सप्लाइंग वाटर टू दी स्मॉलर इरिगेशन फील्ड्स। जो स्मॉलर इरिगेशन फील्ड्स हमने यहाँ पे देखी थी ना, दिस वन, ये जो टाइडल बैराज यहाँ नजर आया आपको, ये टाइडल बैराज वाटर सप्लाई कर रहा है टू दीज इरिगेशन कैनाल्स। ये जो छोटी मतलब कम इरिगेशन कैनाल्स हैं, इनको वाटर सप्लाई करे, उन्होंने ये कहा। ये है कोटरी बैराज, ठीक है, कोटरी बैराज टू दी नॉर्थ। देखो नॉर्थ साइड पर है ना कोटरी बैराज, ये बैराज का साइन है, द ब्लैक कलर, इट इज शोइंग द बैराज, ठीक है। अब ये देखो कोटरी बैराज, इट इज सप्लाइंग वाटर फॉर द स्मॉलर इरिगेशन कैनाल शोन ऑन द मैप 2.13। डू यू नो द रीजन व्हाई द वाटर फ्लोज साउथ ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड? पानी अपने उस पे जो साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली वाटर, अब हमेशा, अब चले कोई मुझे रीजन बताए, उन्होंने अभी पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ कि वो क्यों उस तरीके से साउथ की तरफ जा रहा है। Figure 2.15, this one is figure 2.15, the barrage across the irrigation canal on the map. Figure 2.15 shows the barrage across this canal. Can you find this barrage on the map figure 2.13? The barrage controls the amount of water flowing in this canal. Underline करें, barrage controls the amount of water flowing south in this canal. The water then falls into this Hamza. Yes. Do you know the reason why the water flows south of its own accord? कि water south की तरफ ही क्यों flow कर रहा है? Yes. Anyone can tell me the answer? Raise your hands. So what? Why the water is flowing There towards is river south? Indus. जी, river Indus से तो वो आ रहा है। Now it is flowing towards the south. अब वो south में क्यों flow कर रहा है? For irrigation of crops. वो तो ठीक है, लेकिन एक और रीजन है। जी, रूहान, do you know? So what? Can you please repeat the question? Why the water from the barrage is coming down towards the south direction? क्योंकि रिवर जो होता है वो हमेशा पास थ्रू करता है, और विलेजेस कैनाल में तो रिवर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि रिवर से तो क्रॉप भी उगते हैं। Students, एक चीज जो आप लोगों को जहन में रखनी है ये है कि वाटर जो है, अगर आप किसी डैम की बिल्डिंग, डैम की कंस्ट्रक्शन भी देखो तो वाटर हमेशा इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टुवर्ड्स अ लोअर लेवल। वो हमेशा टॉप से बॉटम ही की तरफ फ्लो करे जो वाटर है, कभी नीचे से तो ऊपर नहीं जाएगा ना। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द बॉटम। यही उन्होंने आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि डू यू नो द रीजन व्हाई द वाटर फ्लोज साउथ ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, कि वो पानी अपने उसमें साउथ की तरफ क्यों जा रहा है? तो बिकॉज वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स। अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, आप वहाँ पर
देखते हो स्प्रिंग्स नजर आते हैं, चश्मे नजर आते हैं जो ऊपर से नीचे, ऊपर पहाड़ों में से बहते हुए नीचे आ रहे होते हैं, तो उसका रीजन ये है कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, यानी टॉप से बॉटम ही की तरफ फ्लो कर। तो ये उन्होंने यहाँ पे आपसे जो है इसका रीजन यही है, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, इसीलिए वो साउथ की तरफ, क्योंकि ये तो नॉर्थ साइड है ना, इसीलिए जब पानी नीचे आएगा तो वो किस साइड पे मूव करेगा, मींस साउथ डायरेक्शन। ये उन्होंने आपसे कहा। ओके, कैन यू फाइंड दिस बैराज ऑन द मैप फिगर 2.13? जी ये तो हमारा हो गया कि वी हैव फाइंड दिस बैराज ऑन द मैप, दिस वन इज द बैराज, कोटरी बैराज, द ब्लैक कलर। And the next question is, the barrage controls the amount of water flowing south. The water then flows into the smaller irrigation ditches shown on the map figure 2. अब आप देखो कि ये बेसिकली ये इरिगेशन कैनाल है और फाइनली ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये नजर आ रहा है आपको कि ये वाटर जो है ये कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस, so what are these? These are called the irrigation. Yes, who will tell me? ये जो आपको स्मॉलर मतलब ब्लू कलर में जो स्मॉल लाइंस नजर आ रही है, ये क्या कहलाती हैं? What are they called? They are called irrigation ditches because they carry water towards the fields. That's why they are called the irrigation ditches. Okay, we will continue this chapter tomorrow, but you have to read these terms so that it will be easier for you to understand the next topic.